Hello and welcome to Ignited Minds. Today, on 22nd of July 2024, we will be discussing the important articles which are highlighted on your screens. These articles are from the Hindu newspaper, and this video will be analyzing all the editorials which are highlighted over here, and these editorials will be dealing with in both the spheres of static plus current affairs. We'll see that how important is it to understand the nits and grits of Nipah virus, and what was the recent Delhi Development Authority's decision which created a hole in Delhi's lung, as it ordered in past February to cut down massive number of trees. What is the issue of Sabrimala and insurance, and what is amoeba brain infection? We'll also see how important is it to employ females to increase the employment at national level. We will also see key differences and key issues with BRICS and Quad. There is a technological, you can say, a new kind of term which emerged about the PC emulators. What are these PC emulators? We will also see some important terms like El Nino, La Nina, Indian Ocean Dipole and other nits and grids of monsoon. ठीक है, लास्ट में डाइजन स्फीयर क्या होता है वो भी देखा जाएगा. बिफोर वी प्रोसीड, there is the word of day which is non plus. You can simply add this word to your vocabulary. It's a synonym to bewilder, mystify, puzzle, perplex or dumbfound. ठीक है. The simple usage of this uh, word can be that you just try to explain that this was the situation in which it seemed a mysterious situation, or it seemed a situation where one should get perplexed. ठीक है, तो you can see the sentence also which has been used over here. Now, as our tradition goes, and we have been discussing UPSC prelims PYQs in the beginning of this editorial discussion, every day हम यूपीएससी के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और यूपीएससी के मेंस क्वेश्चन पे एंड करते हैं. दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू मनी बिल, एंड पिछले साल 2023 में बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे अबाउट मनी बिल. मनी बिल बहुत डिस्कशन में था, तो दैट वाज द मेन रीज़न एंड दैट वाज द मेन इन्फ्लुएंस बिहाइंड दिस बिल, बिहाइंड दिस क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 109 में ये मेंशन किया गया है कि स्पेशल प्रोसीजर क्या होना चाहिए मनी बिल के रिगार्डिंग. तो इज इट आर्टिकल 109 और इज इट आर्टिकल 110? So you should understand one thing. Second, money bill shall not be introduced in Council of States. क्या ये statement correct है या incorrect है? The Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. Next, sorry. Lastly, this statement number 4 says that the amendment to a money bill suggested by Rajya Sabha, have to be accepted by Lok Sabha. जो राज्यसभा अमेंडमेंट सजेस्ट करेगा वो लोकसभा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, which is not a case actually. ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द आंसर गोज सी. However, this question, as I said, was influenced by multiple The Hindu discussions and editorials in the month of October. Before that, in the month of August. तो पिछले साल डिस्कशन भी किया था हमने इस पे, इसी एनालिसिस में. Article 109 of the Constitution talks about the special procedure of money bill, which is a correct statement, and it says that money bill should not be introduced in Council of States. That is, राज्य सभा में money bill introduce नहीं होगा. introduce होगा तो only and only लोकसभा में होगा, और लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा के पास जाएगा, जहाँ पे उसको 14 दिन का टाइम मिलेगा, और 14 दिन के अंदर राज्यसभा को उसको पास करना पड़ेगा. अगर पास नहीं कर रहा है, इट्स सजेस्टिंग सम चेंजेस और इट्स प्रपोजिंग सम अमेंडमेंट्स, it's not necessary for the Lok Sabha to accept all of these changes. We all might have read this thing multiple times in our Lakshmikant also. हमने किसी और बुक NCERT में भी पढ़ा होगा ये चीज़, अपनी क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये चीज़. ठीक है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू द डे ऑफ एग्जाम, इट बिकम्स चैलेंजिंग ओवर देयर.
Now the first editorial which we are going to deal with is the Nipah virus. ठीक है, and Nipah virus, sorry, this Nipah virus was in news. Why wasn't it in news? What are the basic needs of Nipah virus? How it is? I'm seriously sorry because there is some issue with me today. Actually, Nipah virus. Yes, this virus is basically zoonotic in nature, and it gets transmitted from animals and animals to humans also. ठीक है, it's usually was detected in pigs, and it was also detected in bats earlier. ठीक है, तो नीपा वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 1999 में मलेशिया में पाया गया था, जहाँ पे फर्स्ट अपीयर्ड द केसेस इन दी पिग फार्मर्स. ठीक है, मलेशिया में. उसके बाद 2001 में ये स्प्रेड हुआ टुवर्ड्स बांग्लादेश. ठीक है, देन कंबोडिया एंड घाना ऑफ अफ्रीका एंड थाईलैंड ऑल्सो. ठीक है, नीपा इन इंडिया, तो इंडिया में सबसे पहले बंगाल में 2001 में वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में ये पाया गया था और पहला पेशेंट हमें वहाँ पे मिला. और उसके बाद 2007 में वी स्टम्बल्ड अपॉन, और 2007 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक आउटब्रेक हुआ नीपा वायरस का इन इंडिया. ठीक है, इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली. ठीक है, और रिसेंटली दिस आउटब्रेक हैज़ बीन विटनेस्ड इन द केरला, स्टेट ऑफ केरला. ठीक है, if you talk about Nipah virus, it's a single stranded virus. It's enclosed in the negative sense RNA virus. ठीक है, it the structure is mainly of nucleocapsids, and it has proteins and glycoproteins also. ठीक है, that is about Nipah virus. A direct contact with the infected person or the infected animal, whether bats or pigs, or through their fluids, bodily fluids, अगर उससे कांटेक्ट में आता है इंसान, तो तब भी इंसान कंटेमिनेट हो सकता है इस वायरस के थ्रू. द टेस्टिंग प्रोसीजर इंक्लूड्स, द टेस्ट्स ऑफ दिस वायरस आर, फर्स्ट इज RT-PCR, जिससे ये टेस्ट हो सकता है. देन कम्स द IHC, दैट इज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, एंड नेक्स्ट इज ELISA. ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है ELISA पे क्वेश्चन, दैट वाज ELISA. दिस इज ELISA. ठीक है, इट्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एंड लास्टली देयर इज SNT, दैट इज सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. these are some of the tests which are used to detect Nipah virus. ठीक है, the common symptoms include fever, headache, muscle ache, nausea, scratchy throat, dizziness, drowsiness, and sometimes, remember this thing, acute encephalitis, that is brain swelling which leads to death. that is it. ठीक है, और लास्ट में इससे डेथ भी हो सकती है. दिस इज दैट मच of a sort of you can say deadly virus. ठीक है, lastly you need to understand that there is no treatment and there is no vaccine also. ठीक है, however intense care is provided to the patients. Now moving to this is a news. I picked this this image from a corner of the Hindu only. ठीक है, तो it highlights that there are dead fish which are killed by contamination in the environment protection area of Takua
Takwa is on Piracicaba River of Sao Paulo, Brazil. अंडरस्टूड। यहाँ पे मैसिव स्केल में फिशेस की डेथ हुई है। ये जो आप ब्राउन ब्राउन यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा वो रीजन है जहाँ पे मछलियों की डेथ हुई है। अंडरस्टैंड दिस इज द लार्ज स्केल डेथ। अभी ये डेथ क्यों हो रही है इस रीजन में? सबसे पहले तो पिराकाबा रिवर कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। पिरासिकाबा रिवर कहाँ पे है? ये ब्राज़ील के सदर्न एरिया में है। और ये जो रिवर है, इट इज़ फेसिंग थ्री थिंग्स। वन इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनदर इज़ हाउस होल्ड वेस्ट, अनदर इज़ एग्रीकल्चरल वेस्ट। और जिसकी वजह से ये रिवर कंटैमिनेट हो चुका है और उसी की वजह से यहाँ पे ये मैसिव स्केल पे फिशेस की डेथ हो रही है। रिमेंबर, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अमेजोन। ठीक है, अमेजोन जो कि ऊपर है, ये बहुत नीचे है, ये अमेजोन का पार्ट नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ जाके गिरता है? ये अटलांटिक ओशन में जाता है। रिमेंबर दिस एंड अंडरस्टैंड दिस रिवर। नेक्स्ट इज अबाउट हाउथीज। हाउथीज कौन है? ये यमन में रहते हैं। रिमेंबर दीज, जो हमने कल सैटरडे को डिस्कशन किया था, उसी डिस्कशन में ये उसी न्यूज़ आर्टिकल का पार्ट बन सकता है आपके। वहीं पे आप ऐड कर लेना हुदैदा, नुसरात, बुरीज एंड दी सिटी ऑफ एलात, जो कि रेड सी के ऊपर ये सिटी है। ऑल्सो गो एंड चेक फॉर एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये कहाँ पे है? बिकॉज ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, वो भी मेंस में क्वेश्चन पूछा है आयरन डोम के ऊपर। व्हाट इज आयरन डोम? वैसे ही देर इज वन मोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नोन एज एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो गो एंड लुक फॉर इट। ये न्यूज़ आर्टिकल ये सैटरडे का न्यूज़ है। ठीक है, जो कि हमने उस दिन डिस्कस भी किया था। ये उसी डिस्कशन का पार्ट है कि यमन में हाउथीज़ कहाँ पे है। हाउथीज़ इस रीजन में है यमन के। यहाँ पे अगर आप देखो, सना की कैपिटल इनके कब्ज़े में है। जो यमन की कैपिटल है वो इनके कब्ज़े में है। अभी एडन से ऑपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट तेल अवीव कहाँ पे है? तो तेल अवीव यहाँ पे है, इसराइल का ये पार्ट है, मतलब इसराइल की कैपिटल है। ये भी समझना है कि तेल अवीव में जो है हमला किया गया था। यहाँ से लेके यहाँ इन हाउथीज़ ने यहाँ पे ड्रोन अटैक किया, इसको समझो। प्लस देर आर सम सिटीज़ लाइक अल अकाबा यहाँ पे है। मदीना इज़ नॉट अ कोस्टल सिटी, जिद्दा इज़ अ कोस्टल सिटी, मक्का इज़ नॉट अ कोस्टल सिटी। बाबल मंडप कहाँ पे है? बाबल मंडप कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ईडन को रेड सी के साथ, ये भी याद रखो। यहाँ पे जो स्विस कनाल है, स्विस कनाल के अंदर दो लेक्स है, वन इज़ ग्रेट बिटर लेक, अनदर इज़ लिटिल बिटर लेक। ग्रेट एंड लिटिल बिटर लेक्स। ठीक है, ये याद रखो। पोर्ट सूडान कहाँ पे है? ये भी याद रखो। नेक्स्ट, दिस एडिटोरियल इज इम्पॉर्टेंट एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि एक डिसीजन डीडीए का, ये आप अपने आंसर्स में आराम से कोट कर सकते हो। टू कट अराउंड 1100 ट्रीज हैज़ पोक्ड अ होल इन दिल्लीज लंग। ठीक है, और अब ये एडिटोरियल डिस्कस कर रहा है कि एनवायरनमेंट और रेजिडेंट्स, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस एक डिसीजन का। दिल्ली डेवलपमेंट एजेंट, जो एजेंट अथॉरिटी है डीडीए। So the issue which was highlighted on this news was about the amoeba brain infection। और amoeba brain infection को लेके अगर आप देखो तो ये जो एडिटोरियल था ये हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया, 2 हफ्ते पहले। एंड बेसिकली इट्स अबाउट निग्लेरिया फाउलेरी, और निग्लेरिया फाउलेरी द ब्रेन ईटिंग अमीबा। रिमेंबर, इट्स द ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसको दूसरा नाम है निग्लेरिया फाउलेरी। ठीक है, बेसिकली इट्स अ पैरासाइट। रिमेंबर दैट इट्स अ पैरासाइट। इन ऑल ऑफ दीज केसेस we have seen there are 5 cases of this amoeba meningoencephalitis। amoeba meningoencephalitis जिसमें से 3 डेथ्स हुई है। दे हैव बीन रिपोर्टेड ऑफ एडोलिसेंट्स इन पास्ट 3 months। और ये कहाँ पे हुआ है? ये केरला में है। अब हम थोड़ा बहुत देखेंगे इस एक इशू के बारे में कि ये ब्रेन इन्फेक्शन असल में है क्या। इसका दूसरा नाम है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस, PAM। इट्स अ रेयर बट लीथल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन ऑफ रैपिड फैटेलिटी।
is caused by a free living, remember it's a free living amoeba found in fresh water lakes and rivers. अंडरस्टूड? चलो, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो अमीबा होता है ये कहीं पे भी पाया जाता है। कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है? इट लिव्स इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, फ्रेश वाटर्स, freshwater ecosystems. It's a brain eating amoeba. It's a single cell organism. फ्रेश वाटर या स्विमिंग पूल में भी पाया जाता है, ठीक है, बट इट शुड बी वार्म इन नेचर, वार्म फ्रेश वाटर होना चाहिए। हॉट स्प्रिंग्स में भी पाया जा सकता है ये, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पिछली बार पूछा था कि आपको ऑर्गेनिजम्स या लाइफ कहाँ कहाँ को देखने को मिल सकती है। यू कैन विटनेस लाइफ, प्रेजेंस ऑफ लाइफ इवन इन दी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शन। इन दी डीप सी, दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शन। एंड स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड कि ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वॉल्केनो के, साफ लिखा हुआ था वॉल्केनिक हाइड्रोथर्मल वेंट्स, तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता होगा, तो वहाँ तो नहीं मिलेगा। प्लस एक डीप सी सल्फ्यूरिक या जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पे भी मिल सकती है आपको लाइफ, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म्स मिलते हैं। दिस टू वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू ओनली, जिसमें बेसिकली वो एडिटोरियल ही इसी चीज़ पे था, जो एसिडिक लाइफ होती है। सम आई गेस देयर इज सम पर्टिकुलर टर्म अबाउट देम, halophytes or something kind of that, not halophytes basically, that is about saline, जो हाईली saline होता है, तो वहाँ पे अगर आपको लाइफ मिलती है, ठीक है, तो वन इज़ दैट। वो जो क्वेश्चन था दैट टू वाज सिमिलरली कि ये जो फ्रेश वाटर अमीबा है ये आपको हॉट स्प्रिंग्स में भी देखने को मिलेगा या स्विमिंग पूल्स में देखने को मिलेगा। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, आपकी बॉडी को आपकी नोज़ से एंटर करता है, देन इट गोज़ टू योर ब्रेन एंड इट messes up with the न्यूरल सिस्टम ऑफ ब्रेन, एंड उसके बाद ब्रेन में स्वेलिंग होना स्टार्ट होती है, जिसको हम एंसेफेलाइटिस बी बोलते हैं। और दिस प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस PAM, इट देन स्प्रेड्स टू द ह्यूमन ब्रेन एंड देन कंटैम, बेसिकली एक्चुअली में ये होता क्यों है, क्योंकि ये वाटर कंटैमिनेटेड होता है, वाटर में इसका प्रेजेंस होता है और उसके बाद ये आपके दिमाग में चला जाता है एंड देन इट लीड्स टू डेथ ऑफ अ पर्सन एट मैक्स। बट उससे पहले क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, साइनल इश्यूज हो जाते हैं, साइनस के इश्यूज हो जाते हैं, प्लस हेलुसिनेशंस हो जाती है, कन्फ्यूजन, सीजर्स वगैरह वगैरह चीज़ें होती है। बट येस, देर इज ट्रीटमेंट विच इज़ अवेलेबल, treatment is available for this. The treatment includes combination of drugs, like the miltefosine is a drug which is administered for the patients of this disease. ठीक है, done. Next important editorial talks about Sabrimala temple, and the Sabrimala temple, it says that the Sabrimala pilgrims can now avail of insurance under the new scheme. So remember this thing, pilgrimage के लिए भी insurance लिया जा सकता है, that is one thing UPSC may ask कि a person can take insurance for which of the below activities, like for farming, for life, for his motorcycle, for his any for his house, for his shop, for his religious pilgrimage, for his health conditions. So remember this thing, that for some religious pilgrimage also you can avail the insurance schemes which are there. Now not dwelling too much into this Sabrimala temple, which is known for the judgment which Supreme Court of India gave back about the woman entry into this temple. This temple is dedicated to Lord Ayappan, ठीक है, और ये टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? पथनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, which is on the top of Sabrimala hill. Lord Ayappan was a brahmachari or celibate for whole of his life. He practiced this celibacy, and he is also known as
धर्म शास्ता। रिमेंबर, इट्स नॉट धर्म शास्त्रा, इट्स धर्म शास्ता। ठीक है। दिस सबरीमाला टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेरियार टाइगर रिजर्व। ये जो डेंस फॉरेस्ट है जिसके अंदर ये पथनम थिट्टा डिस्ट्रिक्ट है, that is a part of Periyar Tiger Reserve. One thing. Next is about Sabrimala pilgrimage. This pilgrimage basically temple जो है ये ओपन होता है, ये खुलता है। टेम्पल कब खुलता है? ये 2 महीने में खुलता है, ओनली ड्यूरिंग द डेज ऑफ दी मकर संक्रांति। एक तो ये नवंबर में खुलता है और दूसरा ये जनवरी में खुलता है, पर्टिकुलर मंथ्स में खुलता है, अप्रैल में खुलता है, एंड इन द फर्स्ट 5 days ऑफ ईच मलयालम मंथ। ठीक है, तो ईच मलयालम मंथ के पहले 5 दिन में ये खुलता है। अराउंड 15 नवंबर से 26 जनवरी तक, 26 दिसंबर तक खुलता है। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे मंडल पूजा होती है। उसके बाद मकर संक्रांति आती है जनवरी में, उसके बाद महाथिरुमल संक्रांति आती है अप्रैल में, एंड रेस्ट गोज ऑन। तो पर्टिकुलर डेज पे ये खुलता है ये टेम्पल। ठीक है, एंड द पिलग्रिमेज स्टार्ट्स विद वेयरिंग अ स्पेशल माला ऑफ तुलसी बीड्स एंड रुद्राक्ष। तो सबसे पहले ये पहनते हैं वो माला, और उसके बाद इनकी ये जो पिलग्रिमेज है ये स्टार्ट होती है। अब इस पिलग्रिमेज में होता क्या है? ये 41 डेज का व्रत रखते हैं। कितने दिन का? 41 डेज का। और जो ये डिवोटीज ये व्रत रखते हैं, व्हाट दे डू इज दे विल फॉलो ओनली अ लैक्टो वेजिटेरियन डाइट, or they will follow celibacy. They will also follow teetotalism plus celibacy plus lacto vegetarian diet. ठीक है, they will not use any kind of profanity, they will control their anger, they will allow their hair and nails to grow without cutting। ठीक है, तो सिमिलर कुछ कुछ प्रैक्टिस सिमिलर है बाकी सब रिलीजन्स के साथ। द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल इज बेसिकली, इसका जो बहुत बार इसका वैंडलिज्म हुआ, ये टेम्पल टूटा भी और तोड़ा भी गया, बट लास्टली 1950s में इसको रिकवर किया गया और इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। और यहाँ पे जो लॉर्ड अयप्पा की मूर्ति थी वो स्टोन की थी, और उसको बनाया गया पंचलोहा का, मतलब पंचधातु 5 एलिमेंट्स को मिला के उसको बनाया गया। प्लस यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड रूफ मिलेगा आपको, और 4 गोल्डन फीनियल्स। फीनियल क्या होता है? जो आपका शिखर होता है ना, अगर आपने देखा होगा, शिखर के ऊपर ऐसे एक ये होता है, और अमलक बोलते हैं इसको, और अमलक के ऊपर देयर इज दिस कलश, और कलश के ऊपर या तो कलश होगा या तो ट्राइडेंट होगा जिसको त्रिशूल बोलते हैं, या फिर ये फ्लैग होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? फीनियल। इस पार्ट को फीनियल बोलते हैं। दिस फीनियल बेसिकली इन दिस टेम्पल इज ऑफ गोल्ड प्लेटेड, और यहाँ पे 4 फीनियल्स है, गोल्डन फीनियल्स है 4। ठीक है, और 2 मंडप है, एंड देर आर 18 एक्चुअल में स्टेयर केसेस जिन पे चढ़ना होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज सेक्रेड स्टेयर केसेस। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ मच शुड वी फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट, सो दैट हमारा जो काउंटर होगा, एक काउंटर डेवलप होगा फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। बिकॉज अगर आप देखो तो इंडिया में ओनली 33% और 1/3 फीमेल्स आर पार्ट ऑफ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज पर द लास्ट सर्वे ऑफ PLFS। BLFS की सर्वे कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करता है। बट यहाँ पे जो ये ऑथर है ये एक डेटा कोट करते हैं, और ये ग्राफ यहाँ पे देते हैं आपको, किसका? इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का। ये याद रखना है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 का ये ग्राफ देते हैं, और ये बोलते हैं कि रूरल मेल और अर्बन मेल जो है, इनमें जो इंक्रीज देखने को मिला है वो कम है,
जबकि रूरल फीमेल में इंक्रीज जो है ज़्यादा देखने को मिला है और अर्बन फीमेल में इंक्रीज कम देखने को मिला है, बट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है द पार्टिसिपेशन। ठीक है, सिंस 2018 से लेके 2022 तक ये डेटा का काम है और ये यहाँ पे डेटा डिस्कस कर रहा है। अभी ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा हम और कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। लाइक जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज इंडिया में है वो ये है कि सबसे पहले हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स 2% की थी 2012 में, वो इंक्रीज होते होते 5.8% पहुंच गई थी 2019 में, बट 2022 में थोड़ा कम हो रही है 4.1%। जो एडिटोरियल यहाँ पे बोल रहा है ये ऑल एवरी दिस डेटा पर्टेन्स टू द सेम सर्वे, दैट इज इंडियन एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक है, देन ई टॉक्स अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स, कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है, बट स्पेशली इन रूरल इंडिया कि 36.6% ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है रूरल इंडिया में 2022 में, बट अर्बन एरिया में कम इंक्रीज देखने को मिला। दिस डेटा वी कैन यूज फॉर आवर आंसर्स, वन थिंग, रेस्ट इसका कोई काम नहीं है इस डेटा का अदर देन आवर आंसर्स। बस इतना ही डेटा इसका इंपॉर्टेंट है ना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाउएवर ये जो चैलेंजेस यहाँ पे है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज़ अनपेड फैमिली लेबर, ये तो बहुत ज़्यादा है और इसका डेटा आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाकी सब जगह पे नहीं मिलेगा ये डेटा, कि 36.5% फीमेल जो है वो अनपेड फैमिली लेबर में काम कर रहे हैं, जबकि 9.3% मेल्स आर देयर हु आर इन अनपेड फैमिली लेबर। Next is women offer to prefer traditional home-based employment due to flexibility and social norms. The limited access to capital and social constraints hinder women's entrepreneurship. But what are the strategies जिसकी वजह से हम ये improve कर सकते हैं फीमेल का एम्प्लॉयमेंट? पहली है कि एसएचजीज को इम्प्रूव किया जाए, फेडरेशंस को इम्प्रूव किया जाए, नए स्किल्स दिए जाए इनको, और मार्केट लिंकेज बेटर वे में किया जाए। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल इरिगेशन सोर्सेज को डिस्कवर किया जाए टू क्रिएट न्यू एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। ठीक है, वी शुड ऑल्सो इम्प्रूव द वर्क प्लेस एंड वर्क प्लेस फैसिलिटीज़ ऑल्सो। लाइक मैं एक केस स्टडी थी जिसके बारे में डिस्कशन एक इंटरव्यू में बोला था जस्टिस चंद्रचूड़ ने, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला दैट जो हमारी लोकल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, यहाँ के जो जजेस होती है फीमेल जजेस, इनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर एक प्रॉब्लम इशू फेस करने को मिलता है, दैट इज़ कि इनके पास पब्लिक कन्वीनियंस का एक्सेस नहीं होता। क्योंकि जब वो पब्लिक कन्वीनियंस यूज़ करना चाहती है तो उनका सामना होता है उन लोगों से जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो वहाँ बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं अपनी टर्न का। एंड दैट इज़ द इशू कि ये फीमेल जजेस को पूरा दिन लाइक उनको नहीं मिलता वॉशरूम यूज़ करने को, एंड देन दे आर फेसिंग दिस इशू क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जो इनने हाईलाइट किया यहाँ पे ऑनरेबल डी वाई चंद्रचूड़ सर ने। ठीक है, कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। वैसी ही प्रॉब्लम्स इसी एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में नहीं है बट बाकी सब जगहों में भी है। लाइक द बेनिफिट्स ऑफ फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कैन बी हार्नेस्ड बाय आर इकोनॉमी, और जिससे वुमेन्स एम्पावरमेंट होगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बढ़ेंगी या बाकी सब चीज़ें। तो दिस एडिटोरियल ऑल्सो गिव्स अस सम रिकमेंडेशंस कि कैसे कर सकते हैं ये, हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीका यही है कि आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, ओवरऑल बूस्ट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट को और बेटर वर्क प्लेस मिलेगा, फैसिलिटीज़ बेटर होंगी अर्बन एरियाज़ में, तो ही ऐसा होगा। और इनिशिएटिव्स जैसे लखपति दीदी वाला इनिशिएटिव है, वैसे ही इनिशिएटिव्स को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट क्वाड एंड ब्रिक्स। क्वाड एंड ब्रिक्स को थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड क्वाड एंड ब्रिक्स के लिए आई वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इशू विद क्वाड एंड ब्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ और ये एडिटोरियल हाईलाइट क्या करना चाहता है वो भी चीज़ें हम देखेंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वाड। क्वाड का आइडिया 2007 में शिंजो आबे ने स्टार्ट किया था। ठीक है, शिंजो आबे in 2007 gave this idea that we should have a joint diplomatic and military arrangement,
ठीक है. It was basically at that point to highlight the need of this, because उस टाइम पे नीड बस ये नहीं थी कि हमें ऐसा एक अरेंजमेंट चाहिए, नीड इस चीज़ की भी थी कि उस टाइम पे the military and the democratic arrangements were needed. ठीक है. Now the point is कि 2007 के बाद 2012 में, ठीक है, 2007 के बाद 2012 में we have seen that there was this concretization of the term, और इस टर्म को नाम दिया गया था डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड. ठीक है. दिस डायमंड वाज टू बी द क्वाड फर्दर. ठीक है. और 2012 के बाद 2017 में ड्यूरिंग द आसियान समिट इन मनीला, जो ये चारों मेंबर्स हैं क्वाड के अभी प्रेजेंट मेंबर्स, दे met on the sidelines of ASEAN Summit 2017 में, and they formed this quadrilateral alliance to counter China following the South China Sea disputes. ठीक है. तो उस टाइम की बात है, 2017 की बात है ये. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज द डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन द क्वाड मेंबर्स अगेंस्ट द 2020 में एक्चुअल में पोस्ट दिस समिट ऑफ आसियान 2017, उसके बाद 2020 में वी हैव सीन कि जितने भी ये चार कंट्रीज थी, ऑल द 4 कंट्रीज ऑफ क्वाड, दे पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज मलाबार, एंड दैट इज हाउ द क्वाड केम इनटू पिक्चर. नाउ द पॉइंट इज कि क्वाड क्यों बनाया गया, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ क्वाड. स्पिरिट ऑफ क्वाड, स्पिरिट ऑफ क्वाड ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत. बेसिकली दिस केम अप इन 2021, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वर्चुअल समिट कराया था ऑफ क्वाड, एंड दिस स्पिरिट ऑफ क्वाड वाज 3 C's. 3 C's वाज बेसिकली कोविड का वैक्सीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट का कोविड वैक्सीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप. ये 3 चीज़ें यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी इन 2021 समिट. उसके बाद ये फर्दर डेवलपमेंट्स जो आप देख रहे हो, दैट क्वाड इमर्ज्ड एज हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, और बहुत ही सारे एरियाज़ में वी स्टार्टेड डेवलपिंग रिलेशंस, और बहुत सारे एरियाज़ में डेवलपमेंट्स देखने को मिली. लाइक इफ़ यू सी द हाइलाइट्स ऑफ दिस समिट 2021 के बाद 2022 में, इट बेसिकली वॉज अबाउट हेल्थ एंड सिक्योरिटी. इसमें सबसे पहली चीज़ बताई गई थी 2022 में, दैट देयर विल बी द call for global pandemic radar, and there will be green shipping network that Quad will launch. There will be shipping task force also, which will establish 2 to 3 Quad low emissions or zero emission shipping corridor will be there by 2030. There is also clean hydrogen partnership which was launched in 2022. Quad Fellowship में there are around 100 students who are provided scholarship in STEM graduate universities and semiconductor supply chain initiative also. Now the point is कि ये editorial Quad को highlight कर रहा है कि Quad में issue क्या है. issue ये है कि सबसे पहली चीज़, India has benefited from both from enhanced bilateral relations with the Quad partners. ठीक है. USA के साथ जब से हमने जितना Quad ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा एंगेजमेंट्स बढ़ी उतना ज़्यादा हमारा बेनिफिट हुआ. द पॉइंट इज, इसकी वजह से इंडो पैसिफिक जो रीजन है हमारा, इसका सिक्योरिटी पैराडाइम अच्छा हुआ. ठीक है. इसमें सिक्योरिटी का इशू अच्छा हुआ, एंड द मेन मोटो दैट वाज यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स, लाइक यूएस का बेसिक मोटो इज टू काउंटर चाइना. ठीक है. बट इंडिया डज नॉट सी दिस एज अ विजन ऑफ क्वाड. पहली चीज तो ये है कि इंडिया इसको प्योर मिलिट्री अलायंस नहीं देख रहा है. इंडिया इसको मल्टीलेटरल अलायंस देख रहा है कि जिसमें हमारा फायदा हर साइड से हो.
लाइक मैंने आपको जो इनिशिएटिव्स बताए, लाइक कोविड का, क्लाइमेट चेंज का, क्रिटिकल इमरजेंसीज, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, मैंने इनिशिएटिव बताया आपको वाटर के ऊपर, सैटेलाइट्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, 5G डिप्लॉयमेंट, सप्लाई चेन रेजिलियंस। दिस ऑल इज व्हाट इंडिया वांट्स फ्रॉम क्वाड। पहली चीज। दूसरी चीज, दिस एडिटोरियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। दूसरी चीज इज अबाउट ब्रिक्स। अब ब्रिक्स का हम सबको पता है कि ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका आर देयर। ठीक है। ब्रिक्स में इफ यू सी मेजर हाइलाइट्स कि ब्रिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही। ब्रिक्स हैज अराउंड 3.5 बिलियन पीपल। ब्रिक्स हैज constitutes around 45% of the world's population. It has around 28% of the global economy. It contributes to around 44% of global crude oil production. ठीक है। वंस इट गेट्स एक्सपैंडेड, जब इसमें ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई भी आ गए, उसके बाद इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 44% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है। वन थिंग अबाउट ब्रिक्स, और इंडिया ने स्टार्ट ही किया था ब्रिक्स का जो पार्टनरशिप है, ब्रिक्स का जो इंडिया बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इंडिया स्टार्टेड विद एंथुजियाज्म कि हाँ ठीक है ब्रिक्स आएगा, अच्छा होगा, हम सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और हम सब लोग करेंगे क्या? हम सब लोग एक वॉइस रेज करेंगे जिससे हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। कहाँ पे बढ़ेगा? मल्टीलेटरल फोरम्स में। मल्टीलेटरल फोरम्स कौन कौन? यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी, ठीक है, आईएमएफ। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल इश्यूज होंगे वहाँ पे हमारी वॉइस रेज होगी, हमारा सुना जाएगा, और डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच में एक कंसेंसस बैठेगा और हमारे पास ये बार्गेनिंग पावर आएगा। बट धीरे धीरे हुआ क्या, दोनों चीज़ों में इंडिया थोड़ा सा अब डगमगा रहा है। ब्रिक्स में तो पर्टिकुलरली ज़्यादा, कि इंडिया थोड़ा पीछे ले रहा है स्टेप। क्यों? क्योंकि इंडिया ये देख रहा है, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज कॉमन टू बोथ ऑफ दीज। ठीक है। क्वाड और ब्रिक्स में इंडिया ही है एक कंट्री जो कॉमन है, क्वाड में भी ब्रिक्स में भी। क्योंकि इंडिया, वी हैव बीन विटनेसिंग कि ब्रिक्स में चाइना इज टेकिंग लीड। इट इट हैज अटेम्प्ट्स टू पुश द वर्ल्ड व्यू एंड काउंटर द वेस्ट। ब्रिक्स में चाइना का ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है। वैसे ही क्वाड में हम देख रहे हैं कि ये मिलिट्री अलायंस बनता जा रहा है ज़्यादा, क्योंकि वेस्ट इसको मिलिट्री अलायंस इसलिए देख रहा है क्योंकि वेस्ट को जो इंडो पैसिफिक डिस्कोर्स है उसको सेटल डाउन करना है, उसको करेंसी अटेन करनी है, उस डिस्कोर्स की करेंसी लेके आनी है, और उस डिस्कोर्स पे डिसीजंस लेने हैं इंडो पैसिफिक में, उसको ऑफशोर बैलेंसिंग करनी है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज इंडिया हैज बीन वेरी ऑफ ब्रिक्स नाउ, because BRICS getting a higher profile is something which is not to be like not to be you can say materialized in the upcoming in the recent future. It cannot be, ठीक है, in the immediate future it cannot be collateralized or materialized. However, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ब्रिक्स में चाइना वेस्ट को काउंटर कर रहा है और क्वाड में वेस्ट चाइना को काउंटर कर रहा है। द डायलेमा इज इमर्ज्ड फॉर इंडिया कि इंडिया का अभी पोजीशन क्या होना चाहिए। इंडिया इज द ओनली कंट्री, इट फेसेस डायलेमास विद बोथ द ग्रुप्स, एंड देयर इज अ नीड टू बैलेंस द एंगेजमेंट्स विद बोथ द ग्रुप्स। और इंडिया ये कैसे कर सकता है और क्यों करना है? क्योंकि अभी जो है ग्लोबल सिक्योरिटी डायमेंशन पैरालिसिस में है। क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हमने जब से जन्म हुआ है तब से हमने एक ही चीज़ देखी है कि वीटो करते आ रहे हैं लोग, एक दूसरे को वीटो करते जा रहे हैं और डिसीजन फाइनल में कुछ आ नहीं रहा है। वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉज, कि यूक्रेन में, गाजा में, आर्मेनिया में, साउथ अफ्रीका में, म्यांमार में, देयर इज क्राइसिस एवरीवेयर since past many decades now. This violations, this geopolitical dimension of security makes it necessary for India to be part of such organizations, multilateral organizations like BRICS and Quad, and then balance both of them। ठीक है। प्लस देर इज अ ग्रोइंग एक्सेस कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान ये आपस में मिल रहे हैं। ठीक है। प्लस अगर इसमें एक एंगल लिया जाए, साइनो एंगल, लाइक चाइना का एंगल और साइनोस नियो कोलोनियलिज्म एंगल, या चाइना प्लस रशिया जो हम बोलते हैं दैट ट्विंस, दैट कैन बी ऑल्सो सीन। ठीक है।
and North Korea and Iran, one more twin. These are the issues which India, keeping in its back of the head, should frame its foreign policy accordingly. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया का अब स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में. तो इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल शुड मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी विथ इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ पंचियल, गुजराल डॉक्ट्रिन एंड पर्टिकुलरली नैम. ठीक है. It should not align itself with you can say whims and fancies of west or east. Rather, it should approach the international sphere with the concept of national interests, of its own national interests, and maintaining its own strategic autonomy. One thing. Second thing, it should continue strong engagement with Quad. क्योंकि अगर ये क्वाड से पीछे हट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक का डायमेंशन बहुत बड़ा है. नेक्स्ट इज इट शुड ऑल्सो इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स. क्यों? क्योंकि इसको काउंटर भी तो करना है ना. जो मूव्स इसके अगेंस्ट में होंगे, जो मूव्स हमारे इंडिया के, हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट को हैम्पर करेंगे, उन मूव्स को हमें काउंटर भी तो करना है. दैट इज वन थिंग. वी कैन नॉट लीव दैट असाइड. Further, we should also balance the relationships with West and non-Western countries both. Done? This editorial, not that important, just to understand the issue and make it clear to you. There is issue with freedom fighters, family members. इनके लिए बांग्लादेश में एक रिजर्वेशन कोटा है. क्या है? कोटा. जैसे इंडिया में है, जैसे हर कंट्री में होता है थोड़ा बहुत. ठीक है. नॉट हर कंट्री में, बट जिस जिस कंट्री में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, कुछ कुछ कंट्रीज़ में है, जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए कोटा. अब इशू ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इनको कोटा मत दो, और वो जो लोग हैं उनको शेख हसीना ने अभी बोला है कि ये लोग रज़ाकार है. रज़ाकार्स कौन थे? रज़ाकार्स वो लोग थे जो उस टाइम पे पाकिस्तान की साइड से लड़ रहे थे, या पाकिस्तान की आर्मी में थे, या पाकिस्तानी मिलिट्री को बोलते हैं रज़ाकार्स. दे आर ट्रेटर्स एंड दे सपोर्ट दी पाकिस्तानी मिलिट्री. ये शेख हसीना ने बोला है. एंड इसी की वजह से अभी कुछ टाइम पहले से वहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और लार्ज स्केल प्रोटेस्ट है कि ये कोटा ख़त्म करो या नहीं ख़त्म करो, इसी पे प्रोटेस्ट चल रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पीसी एमुलेटर्स. ये पीसी एमुलेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और एप्पल ने इनको अभी अलाउ क्यों किया है. पीसी एमुलेटर इज़ ईदर अ हार्डवेयर और अ सॉफ्टवेयर. ठीक है. which helps two things. One is the host computer and another is the guest computer. ठीक है. तो दो सिस्टम्स हैं, या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा, पहले समझो. अब दो सिस्टम्स है, एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है. ए को हमने बोला होस्ट, बी को बोला गेस्ट. लाइक बी है, इसको कोई पार्ट चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो बस ए के लिए बना है. ठीक है. मान लो ये एप्पल का प्रोडक्ट है और ये विंडोज़ का प्रोडक्ट है, या ये 32 बिट प्रोडक्ट, ये 32 बिट सिस्टम है और ये 64 बिट सिस्टम है. अब प्रॉब्लम ये है कि इसका सॉफ्टवेयर या इसका हार्डवेयर यहाँ नहीं चलेगा, इसका हार्डवेयर यहाँ नहीं चलेगा. बट ये एमुलेटर्स क्या काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं ताकि ये सिस्टम के जो प्रोडक्ट्स है, ये सिस्टम के जो पार्ट्स है, इसके जो सॉफ्टवेयर्स है, वो काम कर जाए इस सिस्टम के ऊपर. एमुलेटर, एज द नेम सजेस्ट्स, it's a software that allows a computer device to emulate another software. imitate करता है दूसरे सॉफ्टवेयर को. ठीक है. just imitate. The difference is how a device operates. It allows it to run and use softwares which are not designed for it, but they are designed for others, and they were previously incompatible devices. जो सॉफ्टवेयर अभी इसके लिए इनकम्पैटिबल है, उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना है पीसी एमुलेटर, एक सॉफ्टवेयर. अंडरस्टूड? वेरी वेल. ठीक है. तो ये इसका बेसिक लॉजिक था कि पीसी एमुलेटर होता क्या है. मैंने आपको बता दिया कि टू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टू प्ले ओल्डर वीडियो गेम्स एंड टेस्ट सॉफ्टवेयर्स. बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आया भी तो यूपीएससी के प्री में आएगा. दो ही चीज़ें पूछी जाएंगी कि इसका डेफिनेशन क्या है, कि मतलब क्या है, ये पीसी एमुलेटर होता क्या है, दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है. तो इसके एप्लीकेशंस आर हाईलाइटेड ओवर हेयर. बस दैट्स इट. हाँ, इसमें इश्यूज ये है कि इसका लीगैलिटी का इशू है कि अगर कॉपीराइट इशू हो सकता है कि होस्ट कंप्यूटर के लिए जो बना है
प्रोडक्ट और गेस्ट कंप्यूटर के लिए जो बना है प्रोडक्ट, अगर अब IPR इस बंदे ने यहाँ पे मतलब रखा हुआ है, इसका पेटेंट यहाँ पे है इस प्रोडक्ट के लिए, और इसी प्रोडक्ट को इलीगली यूज किया जा रहा है मतलब दूसरे सिस्टम्स के लिए, और वो भी कमर्शलाइज किया जा रहा है इनको, तब जाके दिक्कत होगी। ठीक है, तब प्रॉब्लम होगी। हावेवर अभी इसलिए ये अलाउ कर दिया गया है बिकॉज देयर इज एन एंट्री ट्रस्ट कंसर्न इन USA कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेके उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि यार ठीक है पुरानी चीज़ें नहीं चलेंगी, तो मतलब देयर इज दिस नीड टू कंटिन्यूसली कीप योर डिवाइसेस अपडेटिंग, कि एक तो आपको सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना है और दूसरा आपको हार्डवेयर भी अपडेट करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, however there is the risk of using these emulators, like the potential risk is कि जो आपने डाउनलोड किया अनऑफिशियल सोर्सेज से, उसके कॉपीराइट्स इश्यूज हो सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस इश्यूज हो सकते हैं, वो आपकी डिवाइस को हैम्पर कर सकता है, तो अदर इश्यूज लाइक दैट, वो तो सब आप छोड़ दो, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट मॉनसून, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, मॉनसून की टर्म्स और मॉनसून का इशू। ये एडिटोरियल बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेटा। किसके लिए डेटा चाहिए? फोरकास्ट के लिए। एंड नाउ इट सेज कि हमारे पास अप्रोप्रिएट डेटा नहीं है, बहुत ही डिटेल्ड डेटा नहीं है कि हम बहुत ही डिटेल्ड वे में फोरकास्ट कर पाए। ठीक है, पहली चीज, अभी ये डिटेल वे में फोरकास्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, लाइक ऑल इंडिया लेवल पे हमें एक रेनफॉल का इंडेक्स चाहिए कि जो लोकल एंड रीजनल लेवल्स पे रेनफॉल को मेजर करे, और इसी फोरकास्ट को जितना ज़्यादा हम एक्यूरेट कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं मानसून के पोटेंशियल को अच्छे तरीके से। ठीक है, इस एडिटोरियल का शॉर्ट समरी और मतलब ब्रीफ समरी, जो मेन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हुए हैं आगे जाके दूसरे स्लाइड में। बट बिफोर वी डिस्कस दैट, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड सम की टर्म्स ऑफ मानसून। वन इज कि मानसून काम कैसे करता है, जस्ट ए रिविजन। मुझे पता है आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि स्प्रिंग के टाइम पे या समर के टाइम पे, तो जो ही आपका स्प्रिंग का टाइम आता है, स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो सी साइड है आपका, जो समंदर है, वहाँ पे पानी जो है ठंडा रहता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, और जो लैंड का एरिया है वहाँ पे जो पानी है, ये वहाँ पे जो हवा है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। एंड वंस इट गेट्स हीट अप, और उस टाइम पे कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन मतलब लैंड से ऊपर की तरफ हवा उड़ने लगती है, और यहाँ पे एक वैक्यूम जैसा बनता है। वंस दिस वैक्यूम गेट्स क्रिएटेड, तो ये जो हाई प्रेशर वाला एरिया था, ठंडा हवा था जो समंदर के ऊपर बना था, यहाँ से ये हवाएं चलना स्टार्ट होती है और आपको लैंड पे ब्रीजेस आना स्टार्ट करती है और विंड आना स्टार्ट करती है। ये विंड अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, और ये मॉइस्चर जब लैंड पे पहुंचता है तो बादल बनाता है और यहाँ पे बारिश होती है। दिस इज सिंपल फिनोमेना ऑफ मॉनसून। और यही मॉनसून जब रिट्रीट करता है विंटर में, जब ये वापस जा रहा होता है, ये वापस इसलिए जाता है क्योंकि हमारा जो सन है वो अपना पोजीशन पहले ITCZ, मतलब जो सन है वो अपना पोजीशन पहले ऊपर लेके जाता है नॉर्थ की तरफ, फिर साउथ की तरफ जाता है। सन एक्चुअल में वो पोजीशन शिफ्ट नहीं कर रहा होता है, बेसिकली वो अर्थ शिफ्ट कर रही होती है। और अर्थ क्यों शिफ्ट कर रही होती है? बिकॉज अर्थ इज इलिप्टिकल इन इट्स ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट है, प्लस अर्थ का टिल्ट है। ठीक है, एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, जो एंगल है अर्थ का टुवर्ड्स इट्स ओन प्लेन, ये एंगल और अर्थ का इलिप्टिकल ऑर्बिट मेक्स इट कि जो सन है वो तो अपनी जगह पे है ही, वो जितना अर्थ रोटेट करती है, जब अर्थ रोटेट कर रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, 4 सीजन्स बनते हैं। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो होता क्या है बेसिकली, मुझे लगता है आपको पता भी होगा। दिस इज इक्वेटर, दिस इज TOC एंड दिस इज DOC। अगर आप देखो तो नॉर्मली आपका सनरेज जो है वो यहाँ पड़ना चाहिए, ठीक है, इक्वेटर पे पड़ना चाहिए। बट चूंकि अर्थ जो है टिल्टेड है, अर्थ का ऑर्बिट टिल्टेड है, और टिल्ट होने की वजह से ITCZ आपका यहाँ पे बनता है। अब ये ITCZ क्या होता है और ये सनरेज टिल्ट होके क्यों आती है?
तो उसके लिए आपको थोड़ा सीजन्स को वापस रिवाइज करना पड़ेगा, अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन को थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, समर के टाइम पे विंड्स जो जनरेट हो रही है, ये जो विंड्स यहाँ से यहाँ चल रही है, ठीक है, आप बस इतना समझो लैंड और सी का क्या आपस में लिंक है कि विंटर या समर के टाइम पे विंड चलती है ओशन से लेके लैंड की तरफ, और विंटर के टाइम पे विंड चलती है लैंड से लेके ओशन की तरफ। और जो यहाँ पे विंड्स चलेंगी ये ड्राई विंड्स होंगी, ठीक है, और जो यहाँ पे विंड्स चलेंगी ये मॉइस्ट विंड्स होंगी, और ये बारिश लेके आएंगी, ये बारिश लेके नहीं आएंगी, ये बारिश करेंगी, और अगर ये बारिश होगी भी तो डीप सी में होगी, समंदर के अंदर होगी, बहुत नॉट डीप सी में, बट वंस दे ट्रैवल फ्रॉम कोस्ट टुवर्ड्स द इंटीरियर्स ऑफ ओशियन, तो वहाँ पे हो जाएगी फिर बारिश। डन, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अभी जो मैं ये बोल रहा था आपको, ठीक है, चलो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को कि ये असल में हो क्या रहा है, ये ITCZ क्या है। बेसिकली ये जेट स्ट्रीम्स होती है, और आपको ये समझना है कि ये विंड्स आती कहाँ से है। ये अर्थ का पोल है, 2 पोल्स, दिस इज इक्वेटर। चूंकि अर्थ टिल्टेड है तो सनरेज जब पड़ती है अर्थ के ऊपर, है ना, दी सनरेज, इसकी वजह से अर्थ की सरफेस हीट अप हो जाती है, और हीट अप जब सरफेस होती है तो कन्वेक्शन होता है। कन्वेक्शन की वजह से जो ये गर्म हवा यहाँ पे हो रही है ये ऊपर को चली जाती है, ऊपर को चली गई, यहाँ पे आपका एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और अब यहाँ पे होगा क्या, एक स्पेस बनी है, और जो हाई प्रेशर से हवा है वो यहाँ आ जाएगी हाई प्रेशर से, और वही चीज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे वही हो रहा है कि इक्वेटर से यहाँ को जा रही है विंड्स, ठीक है, और ये जो विंड्स है ये नॉर्थ और साउथ की विंड्स एक जगह मिलती है, इसको हम बोलते हैं ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये जो ITCZ है ये कभी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा, कभी साउथ की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो टिल्ट है, समर जब ये टिल्ट या जब अर्थ अपनी ऑर्बिट में होगी, सपोज करो ये सन है आपका और ये अर्थ अपनी ऑर्बिट में जा रही है, जब यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो अर्थ का नॉर्दर्न साइड सन को फेस कर रहा है, या यहाँ पे अर्थ का नॉर्दर्न साइड ज़्यादा सन को फेस कर रहा है, तो उस टाइम पे नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न एरिया ऑफ अर्थ ज़्यादा गर्म होगा बजाय इसके कि सदर्न एरिया। तो इसीलिए उस टाइम पे देयर विल बी अ 6 months नाइट इन द सदर्न पोल, ठीक है, साउथ पोल में it will be night, and in northern pole there will be a 24 hours day. तो these are the conditions। मुझे लगता है बेसिक ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया होगा, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, वन इज एल नीनो ला नीना एंड अनदर इज दिस इंडियन ओशन डाइपोल। सो लेट मी रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू दिस ओनली कि एल नीनो ला नीना का क्या कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल ईयर में होता क्या है। आपको पता है कि सन की रेज पड़ती है, सन की रेज हर जगह पे पड़ती है और वाटर पे भी पड़ेंगी, ठीक है, और ये कौन सा ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है आपका। ये पैसिफिक ओशन पे भी सेम ही रेज पड़ती है, पानी गर्म हो रहा है, बट देयर इज अ कंडीशन। होता क्या है, आपको करंट्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो कि करंट्स होती है, तो यहाँ पे एक कोल्ड करंट आती है पेरू के कोस्ट पे। वो इसलिए आती है क्योंकि नीचे आपका एंटार्क्टिक ओशन है, वहाँ से पानी पिघल के आ रहा है, और यहाँ से एक जो है पेरू की करंट आती है, कोल्ड करंट है ये, पेरू के कोस्ट पे कोल्ड करंट आती है। ये कोल्ड करंट ओशियन में चल रही है, ये कोल्ड करंट जब चलेगी तो ये ओशियन के पानी को आगे धक्का देगी, और ये पानी जब आगे चलता जाएगा तो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बन जाएगा। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म करंट में क्रिएट होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वार्म करंट है, ये इक्वेटोरियल रीजन में करंट है तो ये वार्म करंट है, क्योंकि यहाँ की हवाएं भी गर्म है। अभी होगा क्या, ये पानी चलता जा रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में और ये साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में जमा होता जाएगा ये पानी, और यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, बट उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है टेम्परेचर कि हमारा जो मॉनसून का पैटर्न है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, यहाँ मॉनसून ऐसे आ रहा है, यहाँ पे जो विंड्स है उन पे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा हो तो नहीं आ रहा है, ठीक है।
The equatorial winds, they gather, they warm the water pool towards the west of this region. Once this happens, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये चीज चलती जा रही है, ये पानी यहाँ पे जमा होता जा रहा है और ये बन जाता है लानीना। लानीना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि ये पानी जो है पूरा यहाँ पे जमा हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और सी लेवल भी इंक्रीज हो रही है, सी लेवल इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे जो मॉइस्चर है कंटेंट, वार्म मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से अब बारिश भी ज़्यादा होगी कहाँ पे, इंडिया में। वन थिंग, बट जब ये सी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, वाटर लेवल बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गए, तो अब ये पानी रिवर्स फ्लो में बहना स्टार्ट करेगा और उसी को हम बोलेंगे एल नीनो। जब ये रिवर्स फ्लो में बहना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा उतना ज़्यादा, यहाँ पे आएगा थोड़ा बहुत ड्रॉट और यहाँ पे भी बारिश होना स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया में बारिश कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 100% बारिश गिर रही थी नॉर्मल, तो ला नीना में 110% बारिश गिरेगी और एल नीनो में ओनली 90% बारिश गिरेगी, और इट कैन वेरी ऑल्सो, दिस इज जस्ट रॉ नंबर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज इंडियन ओशन डाइपोल। व्हाट इज इंडियन ओशन डाइपोल? इंडियन ओशन डाइपोल होता कहाँ पे है? ये इंडियन ओशन में होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, दिस इज आर इंडिया। तो ये इंडियन ओशन डाइपोल में हो क्या रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है। कौन सा टेम्परेचर? जो यहाँ अरेबियन सी के नीचे हमारा मेडागास्कर के नॉर्थ एरिया में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया में और यहाँ साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में जो ये टेम्परेचर है, ये जो रीजन है, इसी का टेम्परेचर वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि एक तो हमने इफेक्ट देखा है एल नीनो ला नीना का, दूसरा इफेक्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे होता क्या है, ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ इंडियन ओशन ये टेम्परेचर वेरी करने लगता है। अब हो क्या रहा है, अगर इस एरिया में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो यहाँ इंक्रीज कन्वेक्शन होगा, वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा और यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, और यहाँ कोल्डर टेम्परेचर होगा। तो अब अगर ये ज़्यादा कोल्ड है और ये ज़्यादा वार्म है तो विंड्स ऐसे बहेंगी और इंडिया की तरफ कम विंड्स आएंगी, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश कम होगी। जबकि अगर ये वार्म हो रहा है और यहाँ कंटेंट ज़्यादा बन रहा है तो इंडिया में जो ऑलरेडी मॉनसून आ रहा है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। देर आर इंक्रीज चांसेस ऑफ रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया and reduced chances of rainfall in Australia comparatively respectively in IOD positive and negative. Understood? Two things. तो जब पॉजिटिव फेज होगा आईओडी का तो इस वाले रीजन में ज़्यादा बारिश होगी, जो अरेबियन पेनिनसुला है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला एरिया है या इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, वहाँ हो सकता है थोड़ा बहुत बारिशें ज़्यादा हो जाएं। दीज आर द टू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये एडिटोरियल जो हाईलाइट कर रहा था दैट वाज अबाउट द डेटा एंड हाउ टू कलेक्ट इट एंड हाउ टू एंश्योर दैट वी कम टू मोर एक्यूरेसी इन दी फोरकास्ट, और उसकी वजह से हम इस मॉनसून का पोटेंशियल ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लास्ट में देयर इज दिस डाइसन स्फीयर। व्हाट इज डाइसन स्फीयर? इट्स ए एनर्जी डिवाउर। व्हाट डज दिस मीन? बेसिकली देयर इज दिस फ्रीमैन डाइसन जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ही वॉज अ फिजिसिस्ट, ठीक है, अ थेरेटिकल फिजिसिस्ट। व्हाट ही गेव अ कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है, सन से रेडिएशन आ रहा है और अर्थ पे हमने एक घर बनाया हुआ था, उस घर के ऊपर हमने क्या किया, हमने बोला सोलर रूफटॉप लगाओ और ये सोलर एनर्जी जो है इसको हार्नेस करो। बट विद द टेक्निकल एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जितनी एडवांस सोसाइटीज़ होती जाएंगी, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस सन के इर्द गिर्द ऐसे सोलर प्लेट्स लगाएंगे और सन का जो है ऐसे स्फेरिकल शेप में पूरा इसका ऑर्ब बनेगा। और वो ऑर्ब किस लिए होगा? ताकि इसका पूरा जो रेडिएटिव स्फीयर है इस सन का, इस स्टार का, वो हम पूरी की पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर पाए या हार्नेस कर पाए, क्योंकि एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और इन्होंने ये क्या बोला, उनने हाइपोथेसिस दी इस चीज़ की
कि डिमांड ऑफ एनर्जी इतना ज़्यादा होगा कि हमें एंटायर रेडिएटिव पावर ऑफ दैट स्टार हैज़ टू बी कलेक्टेड। और ये कैसे कलेक्ट किया जाएगा कि ये जो सोलर सेल्स है, ये जो सोलर पैनल्स हैं, इनको एक ऑर्ब में आप अरेंज करोगे इस स्टार के अराउंड, और देन यू विल गेट टू द डाइसन स्फीयर। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइसन स्फीयर। और मैंने पी वाई क्यूज़ का एनालिसिस बहुत डीपली किया हुआ है, और पी वाई क्यू के एनालिसिस से मुझे पता चला है कि लाइक देर वेर 2 to 3 इंस्टांसेस जब पी वाई क्यूज़ बने या यूपीएससी में क्वेश्चंस बने। एक तो द हिंदू में एक क्विज आता है, आई एम ट्राइंग टू add this quiz to your this what I say is, जो आपका ये होता है ना टेस्ट सीरीज, तो उस टेस्ट सीरीज में इस क्विज से क्वेश्चंस आ जाएंगे। सेकंड वाज दिस व्हाट इज इट साइंस सेक्शन। ठीक है, तो जो ओपनहाइमर का क्वेश्चन, आई गेस शायद ओपनहाइमर का एक टॉपिक आया था क्विज में, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बना था, नॉट इन यूपीएससी बट इन सम ऑफ द स्टेट पीसीएसएस। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभी, 2 से 3 इंस्टांसेस मैंने ऐसे देखे हैं, तो इसीलिए अगर आपको ये समझ आ जाता है कॉन्सेप्ट तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लास्टली देयर इज दिस क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी जनरल स्टडीज मीन्स 2023 का पेपर है, GS1 का क्वेश्चन है ये। एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्बनाइजेशन से, क्या अर्बनाइजेशन से सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट कहाँ पे हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो अब हमें क्या बोल रहा है कि अर्बनाइजेशन से सेग्रीगेशन होता है, अर्बनाइजेशन से मार्जिनलाइजेशन होता है, और कहाँ पे होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। क्या टियर 1 सिटीज़ में ही होता है या टियर 2 में भी होगा या टियर 3 में भी होगा। ठीक है, क्या तीनों में होगा या बस टियर 1 में होगा या बस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही होगा। ठीक है, तो ये भी समझना है। तो डिफाइनिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स क्या है सेग्रीगेशन के, सेग्रीगेशन होता क्यों है, और सेग्रीगेशन होता है तो फिर ये सेग्रीगेशन किस लिए होता है। लाइक कुछ कम्युनिटीज़ है वो अपना घेटो अलग से बना लेते हैं, लाइक कुछ नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटीज़ है वो दिल्ली में एक साइड में रहती है, ठीक है, मुनीरका वाले साइड में। वैसे ही कुछ कम्युनिटीज़ है लाइक अपर क्लास, तो वो खान मार्केट में ही रहेंगे, खान मार्केट वाले एरिया में, उनको रेंट भी लेना होगा तो वहीं लेंगे। ठीक है, तो दैट इज समथिंग लाइक ईस्ट दिल्ली में देर इज दिस घेटो ऑफ मुस्लिम्स। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दीज सेग्रीगेशंस हैपन एजुकेशन की वजह से, स्टूडेंट एरियाज अलग बन जाते हैं, स्टूडेंट हब्स अलग बन जाते हैं। ठीक है, कल्चरल सेग्रीगेशन। तो अंडरस्टैंड दिस मार्जिनलाइजेशन क्यों होती है फिर, क्योंकि स्लम्स और गेटो, स्लम्स का गेटो अलग बनता है, उनके लिए अलग ही फीचर्स होते हैं, और वहाँ का जो सोशल बिहेवियर होता है वो अलग हो जाता है, और उसकी वजह से उनकी मार्जिनलाइजेशन भी होती है, और उनको फिर बेसिक कम्युनिटीज़ भी नहीं मिलती है because of the communal tendencies and the other things. I want you to understand how this editorial, how this question is framed with headings and subheadings as per the requirement of the question. वैसे ही इसको बनाया गया है। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, डन। तो विद दिस आई wish you all the best. Thank you for joining in here. Have a good day ahead.